It is Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav who has now slammed Yogi Adityanath government for the hospital fire. Akhilesh Yadav in a statement said this is a direct case of negligence of medical management and administration of very poor quality of oxygen concentrators. Punitive action should be taken against all those who are responsible in this case. The Chief Minister should leave the election campaign and false claim that everything is fine in the state and actually focus on the poor condition of health and medical facilities across the state of Uttar Pradesh. It is hoped that those involved in the electoral politics will get investigated honestly in this disaster time. We'll also bring out radical changes in the so-called health and medical ministry from top to bottom. This is a statement coming in from Akhilesh Yadav. He's asking the Yogi Adityanath government to fix responsibility and is also hoping that those people who are responsible for this horrific case will get investigated and the family of all those people, the family members, will get justice. My colleague Santosh, who's standing right inside the ward where the fire took place, the fire had engulfed the entire ward, leading to the death of 10 newborn children. Santosh, now we are seeing politics also now taking place with regards to the fire. It is Akhilesh Yadav who's pointing fingers at Yogi Adityanath and saying that you need to stop campaigning, need to stop going to other states, you need to be in Uttar Pradesh and you need to look at the medical facilities that are being given across the state of Uttar Pradesh. Definitely, the politicians will start their politics. They will start their politics, giving their statement on this unfortunate incident where the 10 children lost their life. What Akhilesh Yadav alleged the state government and the other political parties will definitely allege the BJP, whether it is in the state or in the center, for the mismanagement. This is the unfortunate incident. Politicians are there for their politics, for their vote bank, for their caste vote bank, for their statements, so that they can polarize their vote banks, so they can increase their vote banks. But this whole incident is the big negligence, what we have noticed here after coming on the ground, that the security, the arrangements so for please any stay on with emergency me. Anurag situation was Bhadoria, not... who's the Samajwadi Party spokesperson, is now joining me. Anurag ji, एक बार नहीं कई बार हमने देखा है उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से भयानक हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं उंगली उठाई जाती है और अब हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि आप बाहर जाके कैंपेनिंग मत करिए, उत्तर प्रदेश में रह के ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी इस बात को बार बार उठा रहे थे कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं है, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। और ये इस बात को लेके, जैसे आपने देखा होगा, चाहे हॉस्पिटल हो या यूनिवर्सिटीज हो, हम हमेशा इस बात को उठाते रहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, इस मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती ना कि हॉस्पिटल में इस तरह की, जब अगर आपकी चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। चिकित्सा व्यवस्था तो आपको अच्छी करनी चाहिए ना, क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए। क्वालिटी की चीजें अगर होती, वहाँ पे ऑक्सीजन जो कहते हैं कॉन्सेंट्रेटर जो होता है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, या उसकी सिलेंडर, हर व्यवस्थाएं अगर वहाँ पे पूरी तरह से चौकन्नी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। अब सरकार को ये जिम्मेदारी लेके जो लोग, जो बच्चे झुलसे हैं, उनकी अच्छी से अच्छी चिकित्सा हो पाए, इसको भी सरकार की इसमें भी चिंता करनी चाहिए। और जल्दी से जल्दी जो बच्चे झुलसे हुए हैं, घायल हैं, उनको जितनी अच्छी चिकित्सा हो सके उनको वो सुविधा मुहैया करानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर हम राजनीति कर ही क्यों रहे हैं, अगर हम अपने लोगों को, अपने जो जनता है उनको हम अगर सुविधाएं नहीं दे सकते, अगर उनको तकलीफ होगी तो हमारी राजनीति का मतलब क्या है, सत्ता का मतलब क्या है? भाई सत्ता क्यों चाहिए? सेवा के लिए चाहिए ना, जिससे हम ऐसी सुविधाएं दें, ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई हादसा ना हो। इसीलिए तो हम लोग सत्ता में होते हैं। तो जब वही नहीं कर पाओगे, जब वही अगर कहीं चूक हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब है इस राजनीति का, सरकार का? तो ये हमारा भी सुझाव सरकार को है कि सरकार चिकित्सा व्यवस्था पे ध्यान दे। और ये आज से नहीं, आपने भी देखा हो, कई बार इसको हम लोगों ने उठाया है कि चिकित्सा व्यवस्था जो है, जो अगर किसी हॉस्पिटल में आप जाओ
तो आपको बिखरा बिखरी सी चीजें लगती हैं। तो उनको कैसे आप उसको ठीक करेंगे, ये तो बार बार सवाल उठाया जा रहा है। आप देखिए झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसा हुआ, कितना दुखद है। लेकिन सरकार को चिकित्सा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। अनुराग भदौरिया, क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है वो जिस तरीके की कैंपेनिंग कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढिलाई हो गई है ये समझने में कि अस्पतालों को जरूरत क्या है? और बड़ा सवाल ये है कि चलिए हादसा हुआ है, इस समय सब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में इन्वेस्टिगेशन होगा? और जो लोग वाकई में जिम्मेदार हैं, क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई? देखिए, जो जिम्मेदार है उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ज्यादा दुखद घटना तो नहीं हो सकती, इससे ज्यादा पीड़ादायक घटना नहीं हो सकती। इसमें तो कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मेरा तो बार बार सरकार को हम लोग बार बार चेताते आ रहे हैं, ये पहले कितनी बार चेताया है कि कम से कम ये जो हॉस्पिटल में की व्यवस्थाएं तो कम से कम अच्छी हों। और जब भी ऐसी चीज होती है तो उसको हम इस तरह से बोल के नहीं कर सकते कि हादसा है। हादसा हुआ क्यों, किसकी नाकामी की वजह से हुआ, किसकी गलती की वजह से हुआ? सिर्फ हादसा कहने से तो नहीं बात बनेगी भाई। बार बार इस तरह की घटनाएं होगी और हादसा बोल के बातों को टाल देंगे तो ठीक नहीं है जी। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।